hour. Although government has took some initiative to develop the tea industry of Assam, I specially request through this presidential address, through you, sir, I request Honorable Minister to government, sir, look after this issue, and they should give a priority, topmost priority to the small tree growers is our country, in the interest of the Indian economy, in the interest of the northeastern region's economy, in the interest of the Assam economy, and especially in the interest of the curb the unemployment in our country, sir. Sir, one more thing I like to say, sir. Assam is a oil producing state, sir. Assam have a huge quantity of oil and national gas, sir. And I like to request government, through you, sir, please establish some better there is a lot, this government has taken lots of initiative. This government has given more than 3,000 crore rupees for the expansion of the Numaligarh refinery. This government is taking initiative to biofuel gas production Numaligarh refinery, to export oil products from our Numaligarh refinery to the other parts of the world, sir. But I like to request you, sir, some more social activity for the petroleum ministry should be started in Assam, sir, because we are an oil producing sector, and this oil sector have a huge amount of money, and they have a special responsibility, special community responsibility fund is there, sir. I like to request through government, through you, sir, I like to request government to take some initiative, given some more money in the social responsibility scheme to the northeastern region, to build some more hospital, infrastructure project, etc., especially, sir. According to report of the World Health Organization, maximum number of cancer patients of our country is from the Assam and northeastern region, sir. I like to request you to the government, to the ministry, please establish some special modern super specialty hospital, especially in Upper Assam, from the oil responsibility fund. I think if this will be done, definitely it will not only benefit from Assam, it will benefit Assam and northeastern region. With this word, sir, I totally support the motion moved by the Honorable Minister to thank the President. I totally support the motion. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Sri Mukhtar Abbas Naqvi ji. उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय, देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफर में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आज उपसभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है। आज इस देश में 2 भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। 2 भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे।
आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं। गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफर रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ, इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे, इस हाउस में हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, दिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था। आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है। सर, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है, और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ 5वां परिवर्तन। सर, ये 6ठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है। जहां से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर, जो 7वां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं, बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की
पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। यह फर्क आया है, नवा फर्क। सर, 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रोब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था। आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती इतनी इतनी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रोब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रोब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था, उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। कि एक देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। ये परिवर्तन 11वां है सर। सर, एक और परिवर्तन है, जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे। इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो, या समाज के किसी भी वर्ग को। ये एक फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झाला था, उसमें रोक लगी है। सर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे देश में, 12वां मैं बता रहा हूं, कि जिसमें कि हमारे देश में कानून हम लोग बनाते रहते थे, बहुत झगड़े भी करते थे कि साहब इस बिल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बिल पे 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, बिल बन गया। अब बिल का ढेर लग जाता था, कानून बन जाते थे। एक ही चीज पर 10 क्रिमिनल कानून बन गए। और उसके बाद उनमें से जो है वो हमने, जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर, तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगता है कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले, 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल, जो बिल की प्रभावी नहीं थे लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव सर, एक और बदलाव, जो बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि जो कि हर देशवासी को गर्वान्वित करने वाला है, ये जो दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना होता था, उस पर रोक लगी है। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं दंगों का हफ्ता
और आतंकवादी धमाकों का महीना कि देश का कोई हिस्सा, भागलपुर से भिवंडी तक देख लीजिए, गुवाहाटी से लेकर के और आप वाराणसी चले जाइए, देश के किसी न किसी हिस्से में जो है वो दंगा फसाद, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता रहता था और देश जो है इन दंगों की आग से बेचैन रहता था। और उसके साथ साथ आतंकवाद महीने में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था। कभी जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी धमाका करते थे, तो कभी मुंबई में धमाका होता था, तो कभी गुवाहाटी में धमाका हो जाता था, हैदराबाद में धमाका होता। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां महीने 2 महीने में आतंकवादी बेखौफ होकर के आतंकवादी अपनी हरकतें ना करते हो। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे पड़ोस के ने एक हिमाकत करने की कोशिश की थी। इस बीच में हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस करके चूहे की बिल से निकाल करके आतंकवादियों को तबाह किया। अफसोस कि उस समय भी हुआ था, जिस देश ने उसे प्रायोजित किया था वो हमसे सबूत मांग रहा था। हमारे कुछ यहां के साथी जो है सवाल पूछ रहे थे। उस समय भी सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। यह बदलाव हुआ सर। तीसरा 18वां बदलाव सर, हमारे देश में जो है वो हमारे देश के तमाम महापुरुष, महानायक, जिन्होंने कि हमारे देश के हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान की आजादी के लिए, आज हम अगर सुकून के साथ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन तमाम महापुरुषों का ये देश ऋणी है जिन्होंने की कुर्बानियां दी। परिवार के परिवार उनके जो है वो तो उन्होंने कुर्बान कर दिए अपने। हम लोग जब गाना गाते हैं कि जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी, लेकिन दिक्कत आई कि हमारी इस देश की कुर्बानी को भी परिवार के पालने में समेट के रख दिया गया। देश के जो महानायकों ने कुर्बानी दी थी वो सीमित कर दी गई। मोदी जी ने आने के बाद जो फर्क हुआ कि हमारे जो लाखों महानायक थे, नायक थे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं पे इग्नोर कर दिए गए थे, उनको सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि जो पहले थे वो हैं, लेकिन ये भी हैं जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। आज तुम इस देश में गर्वान्वित होकर के अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो तो इनके ऋणी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा गुजरात में है। महू, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक, एक लंबी श्रृंखला है। तो हमने जो है उस देश के नायकों और महानायकों को परिवार के घेरे से बाहर निकाल करके और हिंदुस्तान के घेरे में रखा, बताया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो तो थे ही, ये भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये परिवर्तन सर आया है। सर, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी कल मैं सुन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, फला फला फला, वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, बंधक हो गए हैं, एक तरह से उसका कहना था। सर, मैं आपका बड़ा अनुभव है, आदरणीय नेता विरोधी दल का बहुत अनुभव है इस देश के
पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, इतिहास का। एक वक्त वो था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल होता था। कई ऐसे फैसले हैं। मैं लेटेस्ट फैसले आपको मैं 3 तलाक का बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 3 तलाक एक क्रिमिनल कुरीति है, कुप्रथा है, इस पर कानून बनना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। उस वक्त जो है वो कुछ लोगों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए इसी पार्लियामेंट में उस समय की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया और कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, जो कि संविधान में समानता के अवसर देने वाली बात थी, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई बात थी। नहीं माना। मोदी जी ने क्या किया जो परिवर्तन आया सर? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कानूनी तौर से क्राइम माना, कुरीति माना, कुप्रथा माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए हम इस पार्लियामेंट में कानून लाए। पार्लियामेंट का सम्मान कौन करता है? ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस समय की प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ था किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 312 ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हुए जिसको कि निष्प्रभावी बनाने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल हुआ। हम तो प्रभावी बनाने के लिए सर करते रहे। सर इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव देश ने देखा सर, वो बदलाव कश्मीर जो हमारे देश का ताज है, जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग सोचते थे कभी मतलब सोचते भी, बात भी करते थे यार 370 तो खत्म हो ही नहीं सकता। जितनी भी सेंटर के आप बिल हम पास करते थे, कानून बनाते थे, उसमें लिखा जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून जो है, बिजली जाएगी देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी अगर पार्लियामेंट बनाएगा। पानी के लिए जो कानून बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगा। रोजगार के लिए जो बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। जो पिछड़े हैं, कमजोर तबके हैं, उनके रिजर्वेशन का कोई फैसला पार्लियामेंट करेगी, वो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुआ कोई फैसला होगा, उस पर एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। जम्मू कश्मीर को देश की प्रगति की धारा से काटने वाले 370 को खत्म किया। ये परिवर्तन आया मोदी जी के साथ शासनकाल में। और आज पार्लियामेंट को यह लिखने की जरूरत किसी बिल पर या किसी कानून पर नहीं पड़ती कि ये जो शिक्षा का कानून है, ये जो रोजगार का कानून है, ये जो बिजली पानी सड़क का कानून है, ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये परिवर्तन सर बहुत बड़ा आया है। उसके अलावा आपने सीए का देखा होगा। सीए पर लेकर के काफी भ्रम भय का माहौल पैदा किया गया, जबकि यह हिंदुस्तान का उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में और भुट्टो साहब के समय में एक फैसला हुआ कि जो उस देश के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान उनकी सुरक्षा करेगा, उनके सम्मान की, उनके संस्कृति की, उनके धार्मिक स्वतंत्रता की। ये पंत मिर्जा एग्रीमेंट के तौर से जाना जाता है। वो एक संकट का समय है जब तालिबानी मानसिकता ने जो है वो इन देशों को अपने चपेट में ले लिया। वहां के जो अल्पसंख्यक की बात मैं कह रहा हूं, तो वहां हिंदू, वहां पर जो है सिख भाई बहन, वहां पर क्रिश्चियन और भी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैन हैं बहुत से, और सभी लोग रहते हैं। उनका सम्मान, उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक अधिकार पूरी तरह से खतरे में आ गए। ये देश की जरूरत थी, ये पार्लियामेंट की जरूरत थी। जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था, उस फैसले को प्रभावी कराने की जरूरत थी। और सीए में अमेंडमेंट आया, आप सबने पास किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। और जिस वक्त अभी अफगानिस्तान में
तालिबानियों का जुर्म चल रहा था, उस वक्त वहां से इसी सीए की वजह से, सीए के जो संशोधन किया गया, इसी वजह से वहां के तमाम हिंदू भाई, वहां के तमाम सिख भाई, तमाम यहां तक कि जो मुस्लिम भाई भी थे, भाई बहनें थी, उनको भी हिंदुस्तान सुरक्षित लाने और उनकी सुरक्षा करने का काम हुआ है। यह परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद और उससे पहले जो 10 साल था उसमें। सर, एक परिवर्तन और आज देश एक बहुत संकट और कंटक के काल में गुजर रहा है। अभी भी कोरोना का संकट आया, किसी भविष्यवक्ता ने यह नहीं कहा था कि कोरोना कब आएगा और कैसे आएगा और कौन कितनों को मारेगा, कितनों को नहीं मारेगा। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता था। एक ये बहुत बड़ी आपदा आई और 100 साल पहले जब ये आपदा आई थी, उपसभापति महोदय, जिसे कि स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था, उस वक्त हमारे देश की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इस 30 करोड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान सब मिला के मैं कह रहा हूं 30 करोड़। उस 100 साल पहले उस स्पेनिश फ्लू में कितने लोगों की मौत हुई थी? 2 करोड़ से ज्यादा मौत, ये डॉक्यूमेंट है। आज हमारी आबादी 140-50 करोड़ के इर्द गिर्द होगी। की भी टेक न्यूज और बड़ी खबर आज की, बहुत बड़ी जिस खबर। वक्त ये संकट आया, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 17% फोन रियलमी के सैमसंग को बीट कर दिया रियलमी ने। भाई 3 साल से बनी हुई कंपनी जब 30 उनके साल पास भी कोई सुविधा संसाधन लोगों की सेहत सलामती के लिए नहीं था। रियलमी ने सैमसंग को बीट कर दिया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च का एक हमारे देश के तमाम लोग, जो लोग के विदेशों में रह रहे थे, लाखों की संख्या में लोग थे, जिनको कि उनके देश के लोग जो है वो कह रहे थे आप हमारे देश खाली करो, क्योंकि हर आदमी, हर देश अपने अपने लोगों की सेहत और सलामती की चिंता कर रहा था। मोदी जी ने आने के बाद फौरन पहला काम किया, जो लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में थे, जो लोग जो है वो ब्रिटेन में थे, अमेरिका में थे, ईरान में थे, इराक में थे, सऊदी अरब में थे, या देश के अन्य अलग दुनिया के हिस्सों में थे, विशेष व्यवस्था करके उनको यहां सुरक्षित हिंदुस्तान लाना, उसके बाद उनको जो है वो उनके यहां रुकने की व्यवस्था करना, कुछ उसमें हमारे फौज के लोगों के संस्थानों का को जो है प्रयोग किया गया, कुछ और संस्थान बनाए गए, क्योंकि ये सब एकदम बहुत जल्दबाजी में हो रहा था। लाखों लोगों को भारत से सुरक्षित लाना, उनकी सेहत सलामती, और करोड़ों लोगों के हिंदुस्तानियों की सुरक्षा और सेहत सलामती। और जो 2 करोड़ सर हम लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, वो 2 करोड़ लोगों में जो डॉक्यूमेंट है सर, उसमें लगभग 80% लोग भूखमरी से मर गए थे, दवा न मिलने की वजह से मर गए थे। मोदी जी ने आने के बाद क्या किया? मोदी जी ने सबसे पहले जो गरीब था, जो कमजोर तबका था, इस संकट काल में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाने पीने की, अनाज की और भोजन की व्यवस्था करी, जो आज तक चल रही है। अभी समाप्त कीजिए आपका समय। ये एक बहुत बड़ा सर परिवर्तन है और बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि आज जो है वो मैं 18 साल की बात कर रहा हूं, यानी आज से 8 साल 10 पहले क्या था और आज क्या है सर। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, जब आज देश की, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, आज देश की सर, आपके बहुत सारे स्पीकर हैं। हाँ सर, और आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया। तो सर ऐसा है, मैं एक बार, जब ये सरकार बनी 2014 में, जनता ने जनादेश दिया, तो उस वक्त पूरे देश में शोर मचा। किसी ने असहिष्णुता का शोर मचाया, किसी ने कहा कि इस देश से तो अब तमाम देशों की कुट्टी हो जाएगी, खासतौर से इस्लामिक देश तो अब इधर झांकेंगे भी नहीं। ये सारे के सारे चुनौतियां, और यही नहीं, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान और इस देश के राष्ट्रवाद की जो सियासी लिंचिंग हुई है, उसकी पराकाष्ठा हुई। और एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं से पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र होती।
जो मोदी बैशिंग की सनक थी वो भारत बैशिंग का साजिश का रूप लेने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की ताकत, हिंदुस्तान की शक्ति और हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों के सम्मान पर नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति ने उस पर असर नहीं पड़ने दिया, आंच नहीं आने दिया। सर, ये 28वां बदलाव है इन 8 सालों के अंदर का, जो पिछले 10 सालों का और 8 साल के बीच में है। तो सर, हम अपनी एक ही बात कह के खत्म करेंगे कि इस संकट के समय में, इस कंटक के समय में, जब कोरोना का भी कहर था, तूफानों का भी झोंका देखा, टिड्डियों का भी हमला देखा, फिसड्डियों का भी हमला देखा, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के लोगों के लिए कमिटमेंट किया था, इस देश के लोगों के सम्मान, इस देश के लोगों की सुरक्षा, इस देश के लोगों की समृद्धि का जो संकल्प लिया था, उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। इस संकल्प के साथ इस सरकार ने काम किया और आपको इन 8 सालों में 28 बदलाव जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू। श्री संजय राउत जी। Shri Sanjay Raut ji, are you anywhere in the Lok Sabha? No, I don't think he's here. Then Shri Kanak Medla Ravindra Kumar ji. He's also not here. Shri Abdul Wahab ji. Yes, madam, thank you very much for giving me a chance. First of all, I am raised to oppose this motion, but after listening Mr. Our Minister Naqvi sir, 28 reasons 28 I think, it is 28, 28 reasons he found to support this government. I have seen 2, out of this one I have two which you are not mentioning. You are not mentioning the right 2. I am supporting only on 2. Maybe you can make it 30. 28 plus 2. Because in skilling and in some waqaf, other than whatever he told was, everything was done by previous government also, and any government will do. He is only repeating, only praising Modi ji. Increasing the hate speech and communal attack against minority community, particularly Muslims and Christians, he was not mentioned. Young Muslim women professionals are auctioned through online. Statues of Jesus Christ were smashed and churches were attacked during the Christmas. This House should be unanimously condemn such incidents happening in our great country. And about unemployment, nobody mentioned, even President. It is observed there are more than 8 lakhs of vacancies in the central government. Why is the central government not filling these vacancies? I urge the government to immediately fill and the vacancies, at least in central government institutions. Honourable Chairperson, I take this opportunity to appreciate the government and Prime Minister Modi for his Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill development program, and the way it is promoting the startup. I sincerely appreciate the department and ministers for the same. Honourable Chairman, however, I am concerned about the decline of India's global stature. It was a dream of our former President Abdul Kalam ji to convert our country into a superpower by 2020. He was very hopeful of youth and power of education. Today, a large section of our youth are unemployed and uneducated. The government under Manmohan Singh was taking the country in the right direction. All of a sudden, our growth and development have taken a U-turn. Our economic growth indexes and census index and must be moving upward. But surely there is a significant section of our society who is being left out in our growth. There is an increasing inequality in our society, both in social and economic terms. Honourable Chairman, India's image as a champion of democracy and human rights is diminishing due to the
It's increasing intolerance to minorities and intellectuals. The world respects Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru as their values. But today, a section of our society is disrespecting our Mahatma Gandhi ji. This disrespectful attitude towards Gandhi should stop. This House needs to take a lead in fixing these issues that I have raised. One more thing I want to mention, last thing. MP Lads Fund was stopped because of Corona. Agree. But when I came as a member of parliament in 2004, the amount was 5 crores. At that point of time, I could make minimum 1,000 classrooms with that 5 crore. Now, I can make only 200 classrooms. As I am telling, I am not only making classrooms. I could buy a computer that time by 50,000. Now it is okay, 20,000. But government should increase the MP Lads from 5 crores to 20 crores minimum. 24 crores was actually the inflation rate. So I urge the government to re-engage this one MP Lads Fund so that money is going to the public. Please observe silence on this side. Please observe silence. Yeah. Excuse me. I am raising an issue for you also, for BJP members. It's common, not for me only. I am the only one. So I urge the government, and I oppose this motion of this one to the President Sahab, and he was making just a letter given by the Prime Minister. Thank you very much. Thank you, Babji. Dr. Fawzia Khan. She's in the Lok Sabha. Dr. Fawzia Khan. Yes, but she hasn't responded yet. Now we go to the next. Shri Ramdas Athavale ji. Shri Ramnath Thakur ji. Sabha. लोक सभा माननीय उपसभापति महोदय, आप बैठ के भी बोल सकते हैं रामनाथ जी, चाहिए तो जी। आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तीसरी महामारी में कोरोना के दरमियान हम सबों के बीच से जो आदमी नहीं रहे, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना हम व्यक्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचा दें। सभापति जी, उपसभापति जी, मैं सबसे पहले सरकार को यह बधाई देना चाहता हूं कि भारत में पहली बार कोरोना महामारी की दवा बनाने में अग्रणी रहा और अपने देश में ही नहीं, विदेशों में दवा की सप्लाई की और लाखों लोगों को जान बचाने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उन वैज्ञानिकों को और भारत सरकार के मंत्रियों को मैं बधाई देता हूं कि लाखों लोगों को इस दवाई बनाने में और उसकी रक्षा में कामयाबी हासिल की। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार भारत में रक्षा मंत्रालय ने भारत में उपकरण बनाने का काम किया। जो विदेशों से आते थे सामान, उन विदेशों से न ला करके अपने देश में बनाने का काम किया
और भारत को समृद्ध बनाने का काम किया और दलालों से बचाने का काम किया। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को मैं सराहना करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि के मामले में खासकर गंगा के किनारे 9 राज्यों से होता हुआ बिहार में जो सम्मिलित होता है, उन गंगा के किनारों में हरे पेड़ लगाना, पौधा लगाना, मक्के की खेती करना, हरी सब्जियां उगाना और पर्यटन स्थल को समृद्ध बनाना, ये भारत सरकार ने ये अनोखा काम किया है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जन खाता का जो खोलने का काम किया, ग्रामीण महिलाओं को दिन भर लग जाता है किसी बैंक में जाने के लिए और दलालों के हाथों उसे परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं भारत सरकार से कि ग्रामीणों में, पंचायतों में, गांवों में बैंक का सृजन करे, बैंक खोलने का काम करे और 6,66,000 गांवों में बैंक को से समृद्धि करे। इनके साथ हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वहां के ग्रामीण व्यवस्थाओं, खासकर महिलाओं को सुख और सुविधा मिले, दिन भर बैंक में रहने का मौका न मिले। इसलिए हर एक पंचायत में बैंक खोलने का हम निवेदन करना चाहते हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ की समस्या से हम लोग ग्रसित रहते हैं। बाढ़ की समस्या से निदान कराने के लिए भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करे और हाई डैम बनाने का कोशिश करे और बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाने का काम करे। यह हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। बिहार के लिए हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि भारत सरकार बिहार सरकार को मदद करने का काम करेगी और बिहार की जो समस्या है उसे दूर भगाने का काम करेगी। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया कि कोई भी गरीब और बेसहारा व्यक्ति भूखा से न मरे। इसके लिए भारत सरकार ने जो काम किया है यह सराहनीय है और इसको और आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। फसल बीमा योजना में भी बदलाव किया गया है ताकि तकनीकी के आधार पर उनके दावों को खारिज न किया जा सके और इसका परिणाम यह हुआ है कि 8 करोड़ से अधिक किसानों को मुआवजा के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है ताकि उनकी कठिनाइयों का कम किया जा सके। अब सरकार की योजना यह है कि डीबीटी के तहत किसानों को उपज सीधे खरीद की जाए तथा पैदा उनके खातों में सीधे डाला जाए। महोदय, मैं इसके संबंध में सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यद्यपि जन धन योजना के माध्यम से
अधिकांश गांवों में बैंक खोलने के लिए मैं निवेदन कर चुका हूं। महोदय, यह संतोष की बात है कि सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। भविष्य में रेल, राजमार्ग और हवाई यातायात अलग अलग विकसित नहीं होंगे, बल्कि इनका एक मास्टर प्लान बनाकर इन्हें तैयार किया जाएगा। यह भी सुखद है कि वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 100 मीटर से अधिक की रफ्तार से 36,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरा यह अनुरोध होगा कि जब तक सरकार इस प्रकार की योजनाओं को लागू करे जो दे, ऐसा करते समय उन राज्यों पर विशेष फोकस करे जो इस मामले में पिछड़े हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार में जो राजमार्ग परियोजनाएं एवं पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है, उसे तेजी से पूरा किया जाए। अभी ये कार्य वर्षों तक चलते रहे हैं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार किसानों, नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशेष यत्न से तथा रोटी रोजगार के साधन उपलब्ध करावे, ताकि देश में खुशहाली आए। तभी हम सही माने में संविधान में व्यक्त भावनाओं के अनुरूप तथा साथ ही महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गौरवशाली भारत के निर्माण के आह्वान को साकार कर सकें। मैं याद करता हूं 63-64 में तो उन्होंने अविश्वास भारत उन्होंने बताया था कि आप इसलिए हटे कि हमारे किसानों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को जो हक आपने मारा है उस हक को दिलाने में कामयाबी हो। विरोधी दलों ने, नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे कि यह काम करने से नौजवानों को, किसानों चाहते हैं कि पुलिंदा तो, और जो काम नहीं हुए सकारात्मक रूप से आप भारत सरकार से निवेदन करें कि यह काम करें। यह जब आपके मन में विश्वास पैदा होगा तो सरकार के प्रति भी और आम जनता के प्रति भी आपके बारे में अच्छी सोच बनेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार जो पिछड़ों न्यायालयों में जो आरक्षण के आधार पर न्यायाधीशों की बहाली आरक्षण के आधार पर करना है, वह निश्चित रूप से करें। जो बैक लिस्टेड जो जगह खाली हैं, भारत सरकार में 8 लाख लोगों से अधिक जो भर्ती का है उसको भरने का काम करें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और राष्ट्रपति के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रामनाथ जी ठाकुर जी। श्री अजित कुमार भूया। Yes, please. Honorable Vice Chairman, sir, Madam, thank you very much for giving me the opportunity. As I stand to speak against the motion, I would like to know that what happened to the doubling farm income. When I was going through, I did not find any indications of how government is planning for the welfare of farmers. I would like to know what happened to these investment targets, 10 crore jobs and 5 trillion economics. The normal
salaried class got Mahabharat courts, whereas corporate taxes got reduced. The pandemic has exhausted the nations, but what is the relief to come out from such agonies? But as usual, government chooses to ignore the shrinking middle and lower income class. 8 lakhs affordable houses will be completed at rupees 44,000 crore under Prime Minister Awas Yojana in 2022-23. This means rupees 55,000 for each house. I do not understand what kind of house will be of rupees 55,000, especially in the hilly areas of the northeastern region. Agriculture and allied activities which still employ the largest bulk of the population have been left without any mention in the speech. Madam, in 2021, the income of 84% of households has gone down, whereas government income increases 64.9% more in comparison to 2020. The nation is facing terrible inflation, and there is no mention of how to give relief to the middle and lower middle class. There is a reflection in the speech that the mirage of Achhe Din has been conceived, but the truth is ever farther away. I feel the nation must wait for 25 more years for Achhe Din to arrive. It will not be an exaggeration if I say that I sense it is anti-federalist policy and approach of the government of the day. The subsidies on several schemes which directly benefit common people, roughly 80%, has been reduced. The core of the core schemes, including Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee schemes, faces a cut. I had a high expectation that the presidential speech would refer to rural jobs and their avenues, but funds had been cut by 25%. Vice Chairman, Madam, 2014, I would like to say 2014 promise of Achhe Din, 2017 promise of New India, 2022 promise of Amrit Kal in 25 years. The goalpost keeps changing as the timeline keeps changing, as the promises keep changing. Promises are good, but delivery is better. 4.6 crores have been pushed with poverty, and 84% households have suffered from loss of income, and India ranks 104 out of 160 countries in the Global Hunger Index. I do not find any capsules on how to recover from these agonies in the speech. 66 lakhs MSMEs were closed, and this has strained the people to go back to their native places, but there has been no scope and incentives to employ those people at their respective places. Madam, I represent Assam in the upper house, and the government has claimed that peace and tranquility prevail in the northeast states. The government has not spelled out a Naga peace solution, as the honorable members of the House know that the Naga conflict is the mother of all other conflicts of the region. The framework agreement was signed in August 2015 in the presence of the Prime Minister of India, and Prime Minister had subsequently claimed that the long-pending Naga conflict would be resolved in no time. More than 6 years had gone, but what is the latest update of the Naga conflict is still a mystery. I am of the strong view that unless the Naga conflict gets resolved,
the peace process in the region will be just IWAS, and a piecemeal approach will continue to disturb the region. Manipur and Assam's peace-loving people are still longing for resolution of conflict, and the government of India is yet to start a dialogue with several outfits. I am confident that peace and development should move simultaneously, and if the government of India takes bold initiative, bold initiatives in this direction, as the region has been strategically very important and have 98% international border. Thank you very much for giving the opportunity to speak few words. Thank you. Shri Ripun Boraji. Ripun Boraji. Is it? Come here. Here you can come. My time may be counted from now onwards. Thank you, Madam. First of all, the entire country, with high expectation, they were looking that the President's address will be that we have already passed 3 pandemics. So the entire economy of our country has been badly devastated by the pandemic, and the people of this country wanted that since the President's address is the roadmap of the government for the coming years, so definitely there should be ways and means how to recover, how to develop, how to rebuild our economy. But nothing has been mentioned. Meanwhile, many of my friends have already explained. So this 84 crores, we have 130 crores population in our country, and out of that, 84 crores peoples, this income has been come down drastically during this pandemic period, but in the presidential address, not a single word has been mentioned. Not only that, Madam, during our UPA government, when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister, the 27 crores people have been upgraded from below poverty line to above poverty line. This is not my report. This is the Niti Ayog's report. So now, during these 7 years, you are saying there's a 5 trillion country, we are leading our country to $5 trillion. But during these 7 years, nearly 5 crores people have gone again below poverty line. Now, our country, it is very same. We are saying we are Vishwaguru, but we are very same, Madam, that in the world, in the global poverty, our India poverty is the half of the global poverty. So this is the, Madam, our present burning problem is what? This unemployment problem, this skyrocketing prices. Not a single word has been mentioned in the presidential address how to tackle the unemployment problem, how to tackle the price rises. Apart from that, Madam, the purchasing power of our people in this country have been hugely declined. The individual consumption has been hugely declined. But in the roadmap, what we call, the BJP said that it is a roadmap of the government, but in the roadmap, nowhere road is mentioned how to tackle this situation. Not only, Madam, I just, in the para 15, in the presidential address, Madam, para 15, the government has very proudly said that during pandemic period, we have done a great thing. What great thing? That not a single citizen was left in hunger, left in hungry. It is said. But what is the reality? They say
that 80 crores people have been given free rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Nidhi Yojana. But what is the reality? This reality is our people in the world global index, our India's number has come to 101. It was 94 in 2020, and it has come to 101. And that too, madam, government claim that this is the largest food distribution program in the world. But this is the position. Not only that, madam, yesterday our LOP has also said that all the time we are hearing one complaint that 70 years, 70 बरसर आपने किया 70 बरसर आपने किया है. मैडम, वो कहा क्या है, जो एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है, वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद ने मेरे को क्या दिया, मेरा बाप ने मेरे को नहीं है. जो जब first Prime Minister India, Jawaharlal Nehru, he created 33 number of PSUs, no privatization. Lal Bahadur Shastri, he created, Morarji Desai created 9 number of PSU, no privatization. VP PSU, no privatization. I.K. Gujral, Hari Bajpai, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization, and our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU. So this is what we have done 70 years and what you have done in 8 years. Not only that, madam, one more important thing, that in para 40, it is mentioned about women empowerment. Para 31 in the address, it is mentioned in the women empowerment and said that 85% of the households, women, have been given Ujjwala gas. Yes, it is the data. By simply giving Ujjwala gas, there is no women empowerment. There cannot be women empowerment, but the government is not taking the feedback. There is no monitoring. The Ujjwala gas we have given, first cylinder women has taken, but the government has no knowledge. They are not taking this information that after taking the first cylinder, the woman has not been afford to take the second cylinder at cost of poor women. This is women empowerment. This is women empowerment. We have made 33% reservation in Panchayati Raj, 50% reservation in urban local bodies, and we have passed bill for reservation of women.